डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कोर्स में हम स्क्रीनिंग डिज़ाइंस को स्टडी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि विच कैन बी द बेस्ट स्क्रीनिंग डिज़ाइन। हम डिफरेंट डिज़ाइंस को कंपेयर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे और एक्सपेरिमेंटर खुद चूज़ कर सकता है कि उसके लिए बेस्ट स्क्रीनिंग डिज़ाइन कौन सा है। Screening designs are useful for situations where a large number of factors is examined but only few of these are expected to be important. It is of practical interest for the given K to know best projection of the design into K dimensions. तो अगर K number of factors हैं तो हम इसके लिए चूज़ करना चाहेंगे कुछ सूटेबल या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो उसमें से हैं और बाकियों को स्क्रीन आउट करना चाहेंगे। Two-level orthogonal arrays, when used in factorial experiments, permit orthogonal estimation of all the main effects and therefore are often called orthogonal main effect plans. तो most of the times हम जो screening design choose करते हैं वो class of orthogonal arrays में से choose करते हैं। Hall MJ in 1961 and 65 generated Hadamard matrices for order 16 and 20. A rich and readily available class of orthogonal designs that can be constructed by choosing columns from Hadamard matrices. तो ये कुछ यूजफुल डिज़ाइंस हैं जो लिमिटेड साइज के हैं जो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक एंड बर्मन डिज़ाइंस as well as regular factorial designs are the special cases of orthogonal designs. तो ये डिज़ाइन जो हैं ये भी orthogonal estimation देते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली हम डिफरेंट इफेक्ट्स को estimate कर सकते हैं if we use Plackett-Burman design and full factorial design. Also, designs based on Hadamard matrices are useful screening designs and fill the gaps between the run sizes available from regular sizes. तो जो Hadamard matrices से डिज़ाइन प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट जो डिज़ाइन साइजेस के गैप्स रह जाते हैं रेगुलर फैक्टोरियल में, उन गैप्स को फिल करते हैं और हमें उन साइजेस के डिज़ाइन भी अवेलेबल होते हैं जो हमें रेगुलर डिज़ाइंस में अवेलेबल नहीं है। Similarly, Hidayat and Wallace in 1978 investigated the existence of Hadamard matrices for different sizes n and many of their replications. तो हिदायत और वैलिस ने कुछ और डिफरेंट साइजेस के डिज़ाइंस को कंस्ट्रक्ट किया है by using the Hadamard matrices. And Deng and Tang in 1999 proposed generalized resolution and generalized minimum aberration and their use as systematic criteria to compare and assess the goodness of non-regular factorials. तो non-regular factorial designs में best factorial design कौन से हैं उनको चूज़ करने के लिए हम डेंग एंड टैंग के जो दो क्राइटेरियन हैं जिनमें जनरलाइज्ड रेजोल्यूशन और जनरलाइज्ड मिनिमम एवरेशन क्राइटेरिया है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। Similarly, Ma and Feng in 2001 extended the idea of world length pattern and minimum aberration for non-regular designs. They proposed new concepts like the generalized world length pattern and minimum G2 aberration. तो उसी क्राइटेरिया को फर्दर मा एंड फेंग ने एक्सटेंड किया है जो सूटेबल स्क्रीनिंग डिज़ाइंस हैं उनको चूज़ करने में हेल्पफुल हो सकता है। Also, Steinberg and Lin in 2006 developed a construction method of orthogonal Latin hypercube designs. These designs are popular choice when computer simulation is used. तो ये स्पेशल किस्म के डिज़ाइंस हैं जो सिमुलेशन के लिए यूज़फुल हैं। अगर सिमुलेशन की बेस पे डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करने हैं तो हम स्टेनबर्ग एंड लिन का क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं फॉर चूजिंग बेस्ट स्क्रीनिंग डिज़ाइन। Similarly, Jacroux in 2009 discussed industrial experiments which have hard to change and easy to change levels of experimental factors. Usually, fractional factorial split plot designs are used in such situations. तो जेरोक्स ने 2009 में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी किया जो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन की स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के स्क्रीनिंग डिज़ाइंस को स्टडी किया गया है। तो अगर स्प्लिट प्लॉट स्ट्रक्चर के डिज़ाइंस रिक्वायर्ड हैं, यानी हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिफरेंट लेवल्स पे और यूज़ करना चाह रहे हैं और हमारे लिए डिफरेंट फैक्टर्स की इम्पॉर्टेंस भी डिफरेंट है, तो हम इस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से इस मॉड्यूल को में हमने देखा कि हम
किस तरह एक सूटेबल डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं ऑन पर रिक्वायरमेंट। तो एक्सपेरिमेंटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटर को डिसाइड करना होगा कि वो किस किस्म की स्ट्रेटजी में डिज़ाइन को यूज़ करना चाह रहा है। उस लिहाज से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं।